अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, तेलंगाना के 35 स्टूडेंट्स का इटाली के एयरपोर्ट पर हुआ बुरा हाल। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से वेडनेसडे की शाम से इन स्टूडेंट्स को मिलन के एक एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और इनसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कोरोना वायरस की तरफ से स्टूडेंट्स को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो इस वक्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात है। और फिर इसी वजह से इटाली गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत इन तमाम को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया है। बता दें कि इन 35 स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट्स हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले हैं। वहां से इन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को वायरल किया है, जिसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Actually, the situation here is right now that all of us, we are almost 200 people for this flight, and we have booked, we have confirmed seats in the flight. We contacted Indian consulate in Milan, and they told us to book the flight and go ahead with the reservation, despite the rule that there is COVID-19 regulation by the Indian government, which is effective from 10th March onwards. And right now, Air India is not even allowing us to. We are at the check-in counter where the baggage counter actually. We are not even able to enter the queue here and get our baggage checked in here. We are not able to get our boarding passes here. They are, despite our concerns, they are not letting us in because what they want is us to get the coronavirus negative certificate, which is a big challenge right now at this moment, because in Italy there are more than 10,000 cases, if I'm maybe more than that. Yeah, so it's like approximately 10,000 cases for coronavirus in Italy, and Italian health authorities have actually denied Indian consulate for providing any help regarding this certificate issuance. This is what Indian consulate in Milan told us, and we can't technically and practically get this particular certificate from Italy, from Italian healthcare system, because right now Italian healthcare system is handling 10,000 COVID-19 patients, and it's not possible for them to, and it's not even logical for them to check any fit person. I mean, it's just a wastage of resources, no? That you are wasting your resources, all the tests on a fit person, just to provide one certificate for the sake of their travel to their own country. At this particular in this particular emergency situation, they should just use those resources in the treatment of the people who actually need it. So our concern here is that we should be allowed to travel right now to India, because as Indian citizens we have all the right to go back to our own country, because in such a situation of emergency we can't really we can't stay here. We don't really know if we are infected. Italian government would just leave us like that. So who is responsible for us? Only Indian government has to do something, no? हमें कहा जा रहा है, अभी हम जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं 100 से 150 स्टूडेंट्स यहाँ पर सबके सब मौजूद है, और इसमें से किसी भी इन्फेक्शन नहीं है। और अगर किसी भी इन्फेक्शन हो कि अगर पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर आपको तभी अपॉइंट करता है जब आप में कोई सिम्टम्स हो। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो वो आपको लेते ही नहीं है, और बाई चांस अगर आपको लेते तो वो आपको अपॉइंट देते 10 दिन बाद आओ या 12 दिन बाद। और इसका इंस्टेंट ये है कि आपको अगर कोई पॉजिटिव आपकी इन्फेक्शन है तो आपको मिनिमम 10 डेज लेता है कि आप में पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब इंस्टेंस ये है कि इटली लॉकडाउन हो चुका है, इटली लॉकडाउन हो चुका है, हम कहीं जा नहीं सकते, हम यहाँ फंस चुके हैं, हमें यहाँ से कोई बाहर निकालना नहीं चाहता। यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे आए तो हमें कहा जा रहा है कि आप घर जाओ, सैटरडे को आओ। अब सैटरडे को सर्टिफिकेट लेके आइए। हमें पता है, हम पिछले 10 दिन से ट्राई कर रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हमें करते हैं कि आप घर जाओ, अभी जगह नहीं है। अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो हमारी जान को खतरा है, हमें पॉजिटिव हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें आइदर अलाउ करे, या तो इंडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया है, क्योंकि हम यहाँ फंस चुके हैं, हम घर जा नहीं सकते हैं और इटली लॉकडाउन हो चुका है। और अगर हम सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते तो हमें मना कर देता, और हमें पता है कि अगले सैटरडे तक हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ बैठना चाहिए? ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हमसे कोई मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है, ना हमसे
ना कोई हमें एयर इंडिया से हमसे कोई ढंग से ना बात कर पा रहा है, यहाँ पे डेलीगेट से वो ढंग से बात नहीं करो, वो कर रहे कि आप सैटरडे को आइए। सैटरडे को आके क्या होगा, हम यहाँ पर फंस चुके हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं और हम ही नहीं, मिलान में काफ़ी सारे स्टूडेंट फंसे हैं जो घर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि प्लीज़ हमें आज की रात यहाँ से फ्लाई करना दिया जाए, क्योंकि आज भी यहाँ पे फ्लाइट आई थी, तो जब फ्लाइट आ सकती है तो यहाँ से फ्लाइट जा भी सकती है। ज़रूरी नहीं हर किसी के पास में जो आया सर्टिफिकेट था, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो कोई गारंटी नहीं कि 10 मिनट बाद उसको कोरोना होगा नहीं। आप इंस्टेंट सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपको कोरोना नहीं है, भाई इंडिया पहुँच अगर आपको हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, निर्मला सीतारमण से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, हम चाहते हैं कि प्लीज़ हमसे यहाँ से निकाला जाए, एक एयरलिफ्ट किया जाए, या आइदर एयर इंडिया को आप ऑफिशियली डिक्लेयर कीजिए कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट अभी आए, अभी जो यहाँ पर मौजूद है, उन्हें यहाँ से प्लीज़ किसी भी तरीके से फ्लाई करना दिया जाए। और अभी इस टाइम पे एक और इशू है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और उनको इस वजह से अपनी कंट्री वापस जाना है। जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो रही है, तो जस्ट इन केस अगर वो यहाँ पे फंस जाते हैं तो उनकी ना हेल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेबल है यहाँ पे, ना वो अपनी कंट्री जा सकते हैं, तो हाउ वुड दे गेट द ट्रीटमेंट। और वैसे भी यूरोप में अगर आपको प्राइवेट ट्रीटमेंट लेना है, इट्स डैम एक्सपेंसिव। Almost all the people out here are Indian students, so it's not possible for everyone to. और अभी But थोड़ी देर actually the pay so condition much. is that in Italy there is no doctor is willing to do the medication to the any student of any other nations. They are willing to do the only to the people who belongs to the Italy as they are morally recommending this from their nation itself. They are not taking under care of other national students or any else. But please take care about us. We are in Milan. These are the so many students are locked down here. We are unable to go from here homes itself, and we are unable to find a hospital. We don't know the local language. We have came for here to study. Here people also might are required. There is every people know that Europe require the local language minimum. Because if you want to go for a doctor, we need to tell our symptoms as like if we have some symptoms, we need to express. But we don't have a local language. How we जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।